କାହାଣୀ ସେହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପହଁରିବା ଶିଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୋ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି। ସେଠାରେ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଭଳି ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେଠାରେ ପହଁରିବା କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ପହଁରିବା ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଲ ପାଣି, ପରିବେଶ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୁଁ ଏକ ସରଳ ଧଳା ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଡ଼କୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ଟାଇଟ୍ ଡିପ୍ ଏକ ଟି ସାର୍ଟ ବାଛିଥିଲି। ମୁଁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ଶରୀର କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ କେବେ ସଙ୍କୋଚ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ନୀରବ ଥିଲା। ପୁଲ ପାଖରେ ଏକ ଅଫିସ ଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ବୟସର, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ସହିତ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏକ ସନ୍ତରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ନାମ ଲୋକନାଥ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକନାଥ ସାର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସମୀର, ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଆମେ ଫି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଫିସ୍ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ମାସିକ ମାତ୍ର 800। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମହାଶୟ, କ୍ଲାସ କେତେବେଳେ? ସେ କହିଲେ, ମହିଳା ବ୍ୟାଚ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ସକାଳେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟାଚ ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନର ମହିଳା ବ୍ୟାଚରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ହସି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ନୁହନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। କମ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ, ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଫିସ୍ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦୋକାନ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏକ ପହଁରା ପୋଷାକ କିଣିଲି। ଏକ କଳା 2 ପିସ୍, ପତଳା ଉପର ଅସ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଟ ତଳ ଅସ୍। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲି। ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପହଁରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତା ଉପରେ କେବଳ ଏକ ପତଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ମୋର ସାର୍ଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଭିତରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ଲୋକନାଥ ସାର ଏବଂ ସମୀର। ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମହାଶୟ, ଆଜି କେହି ଆସି ନାହାନ୍ତି? ଲୋକନାଥ ସାର ହସି କହିଲେ, ନା ଅଙ୍କିତା, ସେହି 2 ମହିଳା ନିୟମିତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି କେବଳ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ଆଉ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଆସ୍। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ମହାଶୟ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ ରଖି ପୁଲ କଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ନଜର ମୋ ଶରୀର ଉପରେ, ମୋର କଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ, ମୋର ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକନାଥ ସାର ତାଙ୍କ ଗଳା ସଫା କରି କହିଲେ, ପୁଲ ପାଖକୁ ଆସ୍। ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଶିଖ। ମୁଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁଖଦ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଭାସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଲୋକନାଥ ସାର ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସେ ମୋତେ ପଛରୁ ଧରିଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ପେଟ ଉପରେ, ଅନ୍ୟଟି ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ। ଏହିପରି କର, ତୁମର ଗୋଡ଼କୁ ଏହିପରି ଘୁଞ୍ଚାଅ, ଘୁଷୁରି। ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପେଟ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ହାତ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ସମୀର ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି 2 ମହିଳା କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଲୋକନାଥ ସାର ଏବଂ ସମୀର ମୋତେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୋ ଶରୀରରେ ଘୁରୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୋ ପେଟ ଉପରେ, କେତେବେଳେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ, କେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ପାଖରେ ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ। ମୁଁ କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନଥିଲି, ବରଂ
मु जानिशुणी एपरी गतिविधि कली जहा सेमानंक हाथकु भल लागुथिला। गोटिए दिन मु पूल रे अभ्यास करुथिली। मु डेई पड़ी मो गोड़कु हलाइबाकु आरंभ कली। लोकनाथ सार मते धरी साहाय्य करिबाकु लागिले। तांको हाथ मो जंघ पाखकु गला। मु हसिली एवं किछि कहिली नाही। समीर एहा देखि पानीकु मध्य देई पड़िले। एबे सेमाने दुहे मते एकाकी शिक्षा देउथिले, जणे पछरु जणे सामनारू। मोर छाती पानी रे थरुथिला। सेमानंक हाथ एहाकु समर्थन करुथिला। किछि दिन परे मु जानिशुणी परिवर्तनकारी रूमरे परिवर्तन करिबा आरंभ कली। पूर्वरु मु बाहारे परिवर्तन करुथिली, किंतु एबे मु रूम भीतरकु जाउथिली। मु द्वार टिके खोला रखी देउथिली। धीरे धीरे मु मोर पोशाक काढी देउथिली। मो छाती को खोला करी मो हातरे आलिंगन करुथिली। मु जानिथिली सेमाने दुहे बाहारु देखुछंती। कोठरीर कांथरे एक छोट गात थिला। सेमाने सेथि देई चाहि रहुथिले। मु सेमानंकर निश्वास सुनि पारुथिली। गोटिए दिन मु बाथरूम को गली। ता परे मु देखिली जे सेमाने दुहे चापिबा घरे ठिया होई एहाकु चाहि रहिथिले। मु हसी चुप होई फेरी आसिली। सेमाने जानि पारिले नाही जे मु सेमानंकु देखिछि। एहा परे मु प्रतिदिन सेही रूम रे पोशाक बदलाइबा आरंभ कली। केतेबेले कोनोसी अंतःवस्त्र बिना, केतेबेले हालुका पोशाक पिंधी, केतेबेले संपूर्ण खोला। गोटिए दिन क्लास परे मु सेमानंकु कहिली जे मोर टिके जंत्रणा हेउछि। लोकनाथ सार कहिले ऑफिस आसंतु, मु तेल लगाई मालिश करिबी। मु खुशी अनुभव कली। मु ऑफिस गली। से मते टेबुल उपरे सोईबाकु कहिले। से तेल बाहर करी मो पिथिरे लगाइबाकु लागिले। धीरे धीरे तांको हाथ सांको जंघकु गला। तापरे से मते ओलटाई देले। एबे मोर छाती आगकु मुहम करिथिला। से तेल लगाइले एवं जोर रे से चाप पकाइबा आरंभ कले। मु अभिनय कली, महाशय आपण कौन करुछंती, एहा ठीक नुहे। किंतु मु आगकु झुंकी पड़िली। से हसी कहिले, एहा एक मसाज, एहा आपणंकु आराम देव। तापरे समीर भीतरकु आसिले। आमे एकाठी मसाज करिबा आरंभ कलु। मु तांकु अटकाइबाकु चेष्टा कली, बुझाइली जे एहा कराजिबा उचित नुहे। किंतु गभीर भितरे मु आश्वस्ति अनुभव कली। तथापि मु भद्र हेबार अभिनय करी तांकु अटकाइली। मु तांकर उद्देश्य सबु जानिथिली, किंतु मु चाहु नथिली जे से मोर कथा बुझंतु। एहा मास मास धरी चलिला। एबे मु एहाकु बुझी पारुथिली। लोकनाथ सारंको हाथ धरी मोर शरीर पानी उपरे भासीगला। तांकर गोटिए हाथ मो पेट उपरे, अन्यटी मो जंघरे थिला। तांकर उष्म हाथ मोर कला चर्मकु स्पर्श कला एवं मु एक अद्भुत झिमझिम अनुभव कली। समीर पाखरु देखुथिला। तांको आखिरे एक कामना। लोकनाथ सार कहिले, अंकिता एहा करिचाल। जदि तुमे प्रतिदिन एहा अभ्यास कर, तेबे तुमे शीघ्र शिखिब। मु हसी राजी हेली। मु भाबिली जे एही अभ्यास मते केउठिकु नेइजिब। सेही दिन ठारू मु प्रतिदिन संध्या 5टारे स्टाडियम को आसिबा आरंभ कली। सेही दुई महिला केबे नियमित आसु नथिले। केतेबेले जणे आसुथिले, केतेबेले अन्य जणे, किंतु अधिकांश समयरे मु एका थिली। लोकनाथ सार एवं समीर मते एकाठी पढ़ाउथिले, किंतु शिक्षा देबा अपेक्षा सेमानंक हाथ मो शरीर रे घुरुथिला। केतेबेले मु मो गोड़कु हलाइला बेले सेमानंक हाथ मो जंघ उपरकु खसी जाउथिला। केतेबेले सेमाने मो पेट एवं छाती तळे विश्राम नेउथिले। मु केबे प्रतिरोध करिनथिली, बरं मु जानिशुणी एपरी गतिविधि करुथिली जहा सेमानंकु एक भल अनुभव देव। मोर स्तन मोर पहरा पोशाकरे थरुथिला एवं सेमाने उभय मते चाहि रहुथिले। एहीपरि अनेक दिन बीतीगला। मु प्रतिदिन एक नूतन पहरा पोशाक पिंधुथिली। केतेबेले लाल, केतेबेले नील, केतेबेले हळदिया, सबु टाइट एवं आकर्षणीय। पछ खोला थिला। उपर अस केवल मो छाती को घोड़ाई रखिबा पई यथेष्ट। जेतेबेले मु पानी भीतरकु जाउथिली, सेमाने मध्य भीतरकु जाउथिले। पछरु जणे, आगरु जणे, एपरि कर, एहीपरि हाथ घुंचाओ। सेमाने एहा कहुथिले। मो कटी, अंटा एवं केतेबेले मो गोड़ मझिरे स्पर्श करुथिले। मु हसी सेमानंकु उत्साहित करुथिली। सेमानंकर साहस बढ़िथिला। एबे सेमाने मुक्त भाबरे मो छाती को छुइबे एवं चापिबे एवं मु केवल हसिबे। गोटिए दिन मु पूल रे अभ्यास करुथिली। मु फ्रीस्टाइल करिबाकु चेष्टा करुथिली।
हठात मते बाथरूम जीवाकू पड़िला। मु पानीरू उठी चारि पाखकू चाहिली। लोकनाथ सार एवं समीरंकु कौनसी स्थान रे देखागला नाही। मु महिला मानक पोशाक बदलाइबा घर आड़कू गली। द्वार टिके खोला थिला। मु भितरकू जाई सेमानंकु देखिली। कांथरे कान चापी किंबा गात देई चाही रहिथिली। भितरे दुई महिला भयभीत होई पोशाक बदलाउथिले। मु चुपचाप पछकू हली मोर काम सारी बाहरकू आसिली। सेमाने जानि पारिले नाही जे मु सेमानंकु देखिछि। किछि समय परे दुई महिला बाहरकू आसिले। तांको पछे लोकनाथ सार एवं समीर हसुथिले। सेमानंक मुहरे संतोषर छाप। मु निजकू मने मने हसिली। मो मनरे एक भावना आसिला, जदि मु प्रतिदिन एही कोठरी रे पोशाक बदलाइबी तेबे सेमाने मोर संपूर्ण शरीर देखिपारिबे। केवल एहा भाबी मो भितरे उत्साहर लहरी खेली गला। सेही दिन ठारू मु पोशाक बदलाइबा घर रे पोशाक बदलाइबा आरंभ कली। मु जानी सुनी द्वारकू संपूर्ण बंद करी नथिली। एहाकू टिकिए खोला रखिथिली। भितरकू पसिगले मु धीरे धीरे मोर पोशाक काढ़ीदेली। मु मो छाती को खोला करिदेली। हातरे आलिंगन करी घुंचैली। तापरे मु तळ अस काढ़ीदेली। मु जानिथिली जे सेमाने गात किंबा खोला द्वार देई देखुछंती। मु सेमानंकर निश्वास सुनी पारुथिली। केतेबेले मु जानी सुनी दर्पण सामनारे ठिया होई निजकू देखिबार अभिनय करुथिली, किंतु प्रकृतरे मु सेमानंक पई प्रदर्शन करुथिली। किछि दिन धरी मु प्रतिदिन किछि नुआ चेष्टा करुथिली। केतेबेले कोनोसी अंतःवस्त्र बिना, केतेबेले हालुका पोशाक पिंधि, केतेबेले संपूर्ण खोला होई बुलुथिली। सेमाने दुहे अधिकरु अधिक उत्साहित होईगले। सेमानंकर स्पर्श अधिक तीव्र होईगला। पुल भितरे सेमाने खोला खोली भाबरे मो छाती को चापी देउथिले एवं मो जंघकू चापुड़ा मारुथिले। मु केवल हसी कहिथिली, महाशय एपरी करंतु नाही। किंतु मु मो शरीर को आगकू बढ़ाई देउथिली। गोटिए दिन दुई महिला आसी नथिले। मु एका थिली। मु पुल भितरे अभ्यास करुथिली। मु पानी को डेई पड़िली। हठात मोर गोड़रे एक तीव्र जंत्रणा अनुभव हेला। एहा कंचा होईगला। मु चित्कार कली। लोकनाथ सार तुरंत पानी को डेई पड़िले। से मोते उठाई बाहर कले। कौन हेला अंकिता? से चिंतित होई पचारिले। मु तांकू मोर गोड़ देखाइली। समीर मध्य साहाଯ୍ୟ कले एवं मोते ऑफिस रूम को नहीं गले। से मोते सोफारे सुआई देले। लोकनाथ सार कहिले, चिंता कर नाही, मु तेल लगाई मालिश करिबी, तुमे तुरंत आराम पाइब। से समीरंकु कहिले, वाम मास आलमारीरू तेल बोतल आन। समीर ताहा आनिला। लोकनाथ सार मो गोड़रे तेल लगाई मालिश करिबाकू लागिले। धीरे धीरे तांको हाथ मो जंघ उपरकू तापरे उपरकू घुंची गला। मु मोर आखि बंद कली। तापरे से मोर पोशाक उठाई मो छाती को स्पर्श कले। से एहाकू जोर रे चिपिले। मु अभिनय कली, महाशय आपण न करुछंती। से हसी कहिले, आपणकर एहा करिबा उचित। आपण शांत रुहंतु, आपण भल अनुभव करिबे। मु तांकू पुणी कहिली, महाशय एपरी करंतु नाही। किंतु मोर स्वर दुर्बल थिला। मु जानिथिली जे सेमानंकर संपूर्ण कार्यक्रम सेही दिन आरंभ हेबाकू जाउछि। मु एहाकू उपभोग करुथिली। मु बाह्य प्रतिरोध देखाइबी, किंतु मोर शरीर आगकू बढ़िबो। सेही दिन ठारू सबु किछि बदली गला। मु स्टाडियम पई आग्रही हेबाकू लागिली। प्रतिदिन संध्यारे मु प्रस्तुत होई चाली जाउथिली। एक नूतन पोशाक, केतेबेले बिकिनी शैली, केतेबेले एक पीस, किंतु एते टाइट जे मो शरीरर प्रत्येक वक्र उज्जवल होई जाउथिला। घरे मु दर्पण सामनारे ठिया होई निजकू प्रशंसा करुथिली। भाबुथिली जे आजी मोर केउ नूतन अभिज्ञता हेबो। परदिन मु पहुंचिली एवं पुल संपूर्ण खाली थिला। केवल लोकनाथ सार एवं समीर। मु हसी हसी भितरकू गली, महाशय सेही महिला माने आजी आसीबे ठीक ना? मु चिडे पचारिली। लोकनाथ सार हसिले, से केबे आसंती नाही। एबे तुमे आमर एकमात्र शिष्य। मु निजकू मने मने हसिली। शिष्य ना राणी। मु चेंजिंग रूम को गली। मु जानी सुनी द्वार अधा खोला रखिली। मु धीरे धीरे पोशाक पिंधिली। आजी लाल रंगटी पछरे केवल दुईटी सूत्र सहित बंधा होइथिला। छातीर अंचल एते गभीर थिला जे प्राय सबु किछि दृश्यमान हेउथिला। मु दर्पण सामनारे ठिया होई मो शरीर को हलाइली एवं ताकू आदर कली। मु जानिथिली सेमाने दुहे गात देई देखुछंती। सेमानंकर निश्वास भारी हेउथिला। मु बाहरिबा मात्रे लोकनाथ सार कहिले,
अंकिता आमे आजी डाइभी अभ्यास करिबु। मु राजी होइगली। मु उच्च डाइभी बोर्ड उपरे चढ़िली। सेमानंकु देखाइबा पई डेइंबा पूर्वरु जानी सुनी नई पड़िली। सेमाने दुहे तळे ठिया होई उपरकु चाहिले। मु डेई पड़िली। मु बाहरिबा मात्रे सेमाने दुहे पानी भितरकु डेई पड़िले। आसंतु आजी तुमकु पानी तळे प्रजनन शिखाइबा लोकनाथ सार कहिले। से मोते तांको कोଳରେ नेई पानी भितरकु गभीरकु नेई गले। तांको हाथ पानी तळे मो छाती उपरे थिला। मु आखि बंद करिदेली। पानी तळे से मो पोशाकर तार खोलिदेले। मोर छाती पानी रे भासिबाकु लागिला। सेमाने दुहे एकाठी आदर करिबाकु लागिले। मु पानी तळे आनंदरे थिली। बाहरकु आसी मु हसी कहिली, महाशय आपण कोन शिखाउछंती? सेमाने हसिले। एहा प्रकृत पहरिबा। सेही दिन सेमाने मोते प्राय गोटिए घंटा पाई पुल रे संपूर्ण आराम देइथिले। केतेबेले पानी रे, केतेबेले पुल कूलरे बसी, केतेबेले बोर्ड उपरे सोई मु एते मजा कली जे मु क्लांत होइगली। तृतीय दिन जेतेबेले मु आसिली, लोकनाथ सार कहिले, अंकिता आमर जणे बंधु आजी आसिबे। भेंकटेश स्टाडियम रो रक्षणाबेक्षण दायित्व रे अछंती। से जणे भल पहरिबा व्यक्ति मध्य। मु बहुत खुशी होइगली। मु हसी कहिली, ठीक अछि सार, अधिक लोक थिले मजा हेबो। सेमाने उभय परस्परकु चाहि हसिले। भेंकटेश आसी पहुंचिले। प्राय 52 रु 53 वर्ष बयस। तांको आखिरे एक दृढ़ शरीर एवं भोक थिला। मु जानिथिली जे से मध्य सेही परी। मु जानि पारी तांको आगरे नई पड़ी मोर आकर्षण देखाइली। क्लास आरंभ हेला। एबे 3 जण लोक मते एकाठी पढ़ाउथिले। भेंकटेश मोते पछरु धरिथिले। लोकनाथ सार सामनारू समीर मु पाखरे सेमानंकर 6 हाथ पानी रे मो शरीर को घुराई देउथिले। मु आनंदरे चित्कार कली। क्लास शेष हेबा परे सेमाने कहिले, आजी एक स्वतंत्र मसाज करिबा। मु ऑफिस भीतर को गली। आमे 3 जण सेमानंक पछे पछे भीतर को पसिकलु एवं द्वार बंद करिदेलु। भेंकटेश प्रथम थर पई मो छाती को छुई पागल होई गलु। लोकनाथ सार तेल बाहर करिदेले। एबे सेमाने 3 जण मते भल भाबरे आदर करिबा आरंभ कले। जणे मो छाती को चापी देउथिले, अन्य जणे मो अन्य जनंकु आदर करुथिले। तापरे सेमाने मोते विभिन्न स्थान रे धरि रहुथिले। सेही दिन सेमाने 3 जण मते एपरी आराम देउथिले जे मु प्राय अचेत होई जाउथिली। एबे प्रतिदिन जणे नुआ बंधु आसीबा आरंभ कले। चतुर्थ बंधु थिले डाक्टर देशपांडे, लोकनाथ सारंक जणे पुरुणा बंधु। से कहुथिले, अंकिता मु तुमर शरीर परीक्षा करिबी एवं ता परे डाक्टर हेबार आळ देखाई से मते सबुठी छुई देउथिले। पंचम थिले महेश नामक जणे व्यवसायी। से महेश आनिथिले एवं मते स्वतंत्र मसाज करुथिले। शेषरे 6 जण थिले लोकनाथ सार, समीर, भेंकटेश, डाक्टर महेश एवं तांकर पुरुणा प्रशिक्षक बंधु शर्मा। समस्ते 50 वर्षरु अधिक किंतु शक्तिशाली एवं उत्साही। एबे क्लास केवल एक बाहाना थिला। मु पहुंचिबा मात्रे सेमाने पुल बंद करिदेबे। तापरे पुल रे, ऑफिस रे पोशाक बदलाइबा घरे केतेबेले रातिरे स्टाडियम बंद हेबा परे लाइट बंद करी सेमाने समस्ते मोते विभिन्न स्थान रे शांति देउथिले। केतेबेले सेमाने मोते भासमान रखुथिले एवं एकाठी स्नेह करुथिले। केतेबेले सेमाने मोते ऑफिस रे एक टेबुल उपरे सुआई देउथिले। केतेबेले चेंजिंग रूम रे दर्पण सामना रे ठिया करी आगरु पछकु मु सेमानंकु नूतन धारणा देउथिली। आसंतु आजी पूर्ण मालिश करिबा। आसंतु आजी विभिन्न खेल खेलिबा। आजी मु मोर शिष्य एवं तुमे मोर गुरु। मु प्रतिदिन सकाळे उठी भाबुथिली जे आजी मु कोन नूतन खुशी पाइबी। मु सेमानंकु कहिथिली जे तुमे समस्ते मोर प्रभु, मु तुमर सेवारे अछि। मोते प्रतिदिन शांति दियो। सेमाने मोते रानी बोली डाकी संपूर्ण सेवा करुथिले। एहीपरि 6 मास बीतीगला एवं मु संपूर्ण संतुष्ट एवं खुशी होइगली। मो शरीर प्रतिदिन मालिश एवं स्पर्श पाउथिला। मु सेमानंकु कहिथिली, तुम समस्तंक जोगु मु बहुत खुशी एवं आजी मध्य सेही धारा जारी रहिछि। एहा केबे शेष हेबो नाही। बंधुगण, आपण मानंकु आमर कहानीटी किपरि लागिला कमेंट रे निजर मतामत दियंतु। जदि आपण मानंकु आमर कहानीटी पसंद आसीछि ताहेले वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। धन्यवादर नमस्कार।